Hello students, welcome to this last video in our Ionic Equilibrium series. What are we doing here? This is Abhilash Sir. I'm your chemistry master teacher at Vedantu, and this is me finishing our Ionic Equilibrium series on YouTube. What are we doing today? We are looking at solubility and KSP. We have already looked at all the topics in Ionic Equilibrium so far. Let me just quickly recap it for you. We started off with basics related to ionic solutions. We looked at finding pH of weak acids. Then we looked at pH of mixture of weak acids, polyprotic weak acids. Then we went on to what you call as salt hydrolysis. Then we went on to look at what you call as buffers and the idea about indicators and so on. And the last video that we had was related to titration, right? So titration, pH curves and so on. I would urge you to go through all of these videos once again. The last video being specifically something that is like a revision for all the videos before that. And today what we have here is specifically related to solubility of what you call as sparingly soluble salts, right? Now, what do you mean by solubility, right? Now, solubility as far as sparingly for any substance for that matter, any salt for that matter, solubility का मतलब है how many moles of this substance will dissolve in 1 liter of water, right? We are like looking at aqueous solutions by the way primarily, right? We are not looking at other solvents as such, right? अब ये solubility related जो topic है, right? इसमें ionic में क्या क्या आता है, like सिंपल सॉल्युबिलिटी इन वाटर, लाइक सॉल्युबिलिटी जहाँ पे और कोई कॉमन आयन इफेक्ट ऐसे कुछ नहीं है, दैट इज द सिंपलेस्ट वन दैट यू कम अक्रॉस, राइट? देन इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन्स, अगर कॉमन आयन अलग से डाल दिया तो कॉमन आयन इफेक्ट ली शैटलियर प्रिंसिपल वाला ही एंगल है. तो इफ यू पुट सम अदर कॉमन आयन्स इनटू दिस सॉल्यूशन, दैट इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड, अकॉर्डिंगली सॉल्युबिलिटी विल चेंज. दैट इज द सेकंड थिंग. Then simultaneous solubility. Let's say that you have two sparingly soluble salts. दोनों आपको मालूम है AgBr, AgCl टाइप्स का कुछ है. If you mix both of these and try to get simultaneous solubility, that is one category of questions that you can expect here. Then condition for precipitation. Precipitation कब होता है? आप अगर एक मान लो कि जैसे आपके पास एक NaCl सोल्यूशन पड़ा हुआ है, उसमें आप ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट डालते जा रहे हो, तो आपको AgCl का प्रेसिपिटेट कब मिलना स्टार्ट होगा, राइट? अब वो ऐसे मतलब ठीक है, आप डालना शुरू करते ही ऑलमोस्ट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट कैलकुलेशन वाले पर्सपेक्टिव से कि कितने ml में कितने कंसंट्रेशन होगा Ag प्लस का जब प्रेसिपिटेशन बनना शुरू होगा, दैट इज समथिंग दैट यू सी हियर. Then solubility in a buffer and solubility when there is complexation. तो buffers आपको दिया हुआ है, तो buffer की वजह से solubility में क्या फर्क पड़ेगा, या फिर एक complexation reaction अगर हो रहा होगा तो उससे solubility में क्या फर्क पड़ेगा. Such kind of questions are what you can expect, right? अब JEE Mains में probably I would say कि first 4 are relevant, right? For solubility in a buffer solution and solubility due to complexation reactions is not something that you can get on a mains level, but yeah, हाँ तो कुछ भी सकता है, never know. JEE है तो you can expect almost just about anything, right? So let's go into the topics here. So as I was saying, solubility का definition क्या है? Solubility is defined as the number of moles of the salt that is dissolving per liter of the solvent. Water is normally the solvent that we consider in this particular chapter. We are only looking at aqueous solutions, right? So now let's say that there is a general salt Ax, By, X and Y being the coefficients that are there inside, right? तो numbers that are there, right? तो आपके पास for example आपके पास MgCl2 है, तो Mg है और Cl2 है, राइट? लाइक दैट. तो आपके पास ये जब सॉल्यूशन में जाएगा तो आपको A प्लस, होपफुली A प्लस आयंस और B माइनस आयंस, राइट? तो आपके पास नॉर्मली पता ही है वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप ऐसे, जब एक कंपाउंड लिखते हो तो प्रॉब्ली B का वैलेंसी X है और A का वैलेंसी प्रॉब्ली Y है, राइट? तो आपके पास आएगा X A Y प्लस एंड बाई B माइनस X, राइट? तो आपको एक मोल AX BY डिजॉल्व होने पे X मोल्स A कैटायन मिलेंगे और Y मोल्स B एनायंस मिलेंगे, राइट? तो आपके पास अगर S मोल्स इसका डिसॉल्व हो गया जो कि सॉल्युबिलिटी है, राइट? अब ये AX BY जो है सॉल्ट है, सॉलिड है, राइट? इसमें जितना डिसॉल्व हो गया, ये मोस्टली अपन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करने वाले हैं, यहाँ पे लो सॉल्युबिलिटी वाली चीज़ों की बात करने वाले. तो इसमें जितना डिसॉल्व हो गया वो सॉल्यूशन में जाके वी अज्यूम कि ये 100%
आपके पास आयनाइजेशन हो चुका है, यानी कि इसमें अगर 1 मोल डिसॉल्व होगा तो वो 1 मोल पूरा का पूरा टूट के आयंस में सेपरेट होगा, ये अपना अजम्पशन होगा, अनलेस एंड अनटिल दे स्पेसिफिकली मेंशन कि 100% आयनाइज नहीं है, राइट। वी हैव एन एग्जांपल इन दिस, वी विल सी समवेयर डाउन द लाइन, बट या पॉइंट इज कि आपके पास 100% आयनाइजेशन नॉर्मली अपन अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ भाई जितना डिसॉल्व हो गया वो सारे के सारे हाइड्रेटेड सेपरेटेड आयंस में कन्वर्ट होके पड़े होंगे, राइट। तो ये आपके पास आया x, अगर s मोल्स इसका डिसॉल्व हो गया तो xs मोल्स मिलेंगे A कैटायन के और ys मोल्स मिलेंगे ये B एनायन के, राइट। अब इसका इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये तो सॉलिड है, right? So what is the equilibrium that is present here? Your AXBY salt is in equilibrium with its aqueous hydrated ions, which is AY plus and BX minus, right? तो अब अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आगे क्यों नहीं जा रहा, हाँ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो दैट इज व्हाट यू कॉल एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, राइट। सो ये इक्विलिब्रियम जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए KSP अपन लिख सकते हैं। तो KSP क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस सॉल्वेशन वाला इक्वेशन। तो ये आएगा आपके पास A का कंसंट्रेशन टू पावर X, B का कंसंट्रेशन टू पावर Y। समझ में आया? ये तो सॉलिड है, इसका एक्टिविटी यूनिटी लेते हैं, तो आपके पास ये XS टू पावर X और YS टू पावर Y आएगा। तो KSP विल बी X टू पावर X, Y टू पावर Y एंड S टू पावर X प्लस Y, राइट। S टू पावर X तो इधर से आएगा, S टू पावर Y इधर से आएगा, X टू पावर X प्लस Y हो जाएगा। तो आपको मिलेगा KSP का जनरल एक्सप्रेशन, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर KSP विल बी X टू पावर X, Y टू पावर Y, S टू पावर X प्लस Y। What is S? S is the solubility in moles per liter of this sparingly soluble, hopefully sparingly soluble salt। नॉर्मल सॉल्ट के लिए भी आप लिख सकते हो, बट वो एक ही जिनकी सॉल्युबिलिटी हाई है उसमें KSP OSP का तो उतना सेंस नहीं बनता। वी आर प्राइमरली डीलिंग विद sparingly soluble salts in this part of the chapter. For example, right, let's say that you want to write down the expression for KSP of Li3K3 AlF6 whole twice. Now we know that in complexes the complex ions don't split up, right? So when this splits up, what you are going to get is 3Li plus 3K plus and 2 AlF6 3 negative, right? तो ये complex नहीं टूटता बेसिकली। तो आपके पास ये KSP क्या आएगा? इसका कंसंट्रेशन टू पावर 3 इंटू इसका कंसंट्रेशन टू पावर 3 इंटू इसका कंसंट्रेशन टू पावर 2। तो ये इसका जो 3Li प्लस है वो 3S है, ये पता नहीं इधर कैसे आ गया, ये पूरा थोड़ा इधर होना चाहिए था। ये 3S आपका 3K प्लस का है और ये 2S आपका AlF6 3 नेगेटिव का है। तो आपके पास KSP आएगा 3S टू पावर 3, 3S टू पावर 3 एंड 2S टू पावर 2। तो ये आएगा आपके पास 3 टू पावर 3, X टू पावर X, Y टू पावर Y वैसे ही, और 2 टू पावर 2, तो ये 2916 S टू पावर 8। सिंपल एक्सप्रेशन है, दिस इज जस्ट अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन मोलर सॉल्युबिलिटी S एंड द KSP ऑफ द सॉल्ट। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे नीट वीट में भी आते ही हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड सॉल्युबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। कैलकुलेशन भी कुछ है नहीं, सो दीज आर throwaway questions literally, right? Next, एक simple illustration. Let's just say that the solubility product of calcium carbonate is 9 into 10 to the power minus 8. Then calculate its solubility in grams per liter, right? तो calcium carbonate you know is a precipitate, it's a low solubility वाला salt. अब इसका solubility आपको KSP का वैल्यू दिया हुआ है 9 into 10 to the power 8 और आपको पूछा हुआ है solubility, right? अब ये CaCO3 है, Ca2 plus CO3 2 minus में कन्वर्ट होगा। अगर इसकी solubility S है तो ये S और S मिलेगा आपको, तो S स्क्वायर बेसिकली आपको 9 into 10 to the power minus 8 दिया हुआ है, तो S आएगा 3 into 10 to the power minus 4। बट S क्या है? मोल्स पर लीटर है, हमें ग्राम्स पर लीटर में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो ये 3 into 10 to the power minus 4 इंटू 100 है कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट, तो यू विल गेट इट एज 0.03 grams per liter, right? Once again, KSP is S square because you will get S and S. So S square is given as 9 into 10 to the power minus 8. So you get S ka value as 3 into 10 to the power minus 4, which is the number of moles of this thingy CaCO3 dissolving per liter. But we were asked solubility in grams per liter, so we will multiply it by molecular weight. We will get 0.03 grams per liter.
This is the question where I was speaking about. Not all of it that is dissolved goes into solution as a separated hydrated ions. Like last question also we assume कि चलो सही है CaCO3 जितना dissolved हो रहा है S अगर है तो S and S were Ca2 plus and CO3 2 minus. यहाँ वो नहीं है case. What is the question here? Calculate the solubility of PbI2 in water which is at 25 degrees C, which is 80% dissociated, right? What does that mean? Which means the PbI2 is not 100% dissociated in solution. Which means that आप अगर 1 mole dissolve कर पाओ तो that 1 mole is not going to entirely split up into Pb2 plus and 2I minus. Why? There are different reasons for that. That is partially because of the covalent character and all that they don't entirely convert into separated hydrated ions. So what we see is that in PbI2, right, so what the equation that we have is PbI2 giving you Pb2 plus and 2I minus. यहाँ पे अगर solubility S है, राइट यानी कि S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हो रहा है लेकिन वो S मोल्स जो है पूरा टूट नहीं रहा. कितना टूट रहा है उसमें से ओनली 80% इज डिसोसिएटेड, विच मीन्स इफ आई हैव S मोल्स डिसॉल्विंग आई शुड गेट S मोल्स ऑफ दिस एंड 2S मोल्स ऑफ दिस, बट इंस्टेड व्हाट विल आई बी गेटिंग 0.8S एंड 0.8 into 2S यानी कि 1.6S. समझ में आया? तो इट्स ओनली 80% डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन. PbI2 इज अ सॉल्ट विच हैज कोवैलेंट कैरेक्टर बिकॉज ऑफ विच इट इज 80% डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन. तो वी विल से दैट ओके 0.8S और 1.6S आ गया आपके पास. तो KSP क्या आना चाहिए? KSP शुड बी कंसंट्रेशन टू पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस टू पावर 2. तो ये आना चाहिए 0.8S टू पावर 1 इंटू 1.6S टू पावर 2, राइट. तो ये आप अगर इजी कैलकुलेशन करना है तो ये 2 to power 3 इंटू 10 to power minus 1 है और ये 2 to power 4 by 10 to power 2 वगैरह है. तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो 2.048 इंटू 10 to power minus 9, राइट. अब ये 2.048 इंटू 10 to power minus 9 आपको KSP दिया हुआ है, इससे आपको solubility S मिल जाएगा, राइट. तो ये आएगा आपके पास S to power 3 इज इक्वल टू 2.048 into 10 to power minus 9 divided by 0.8 into 1.6 का स्क्वायर, राइट. तो ये आप जो भी आप इसको अगर 10 नीचे ले लो तो ये 2 to power 3 है, ये 2 to power 4 to power 2 है, मतलब 2 to power 8 हो गया और डिवाइडेड बाई 10 to power 2 तो ये 1000 आएगा. तो इस तरफ ले जाओ 2048 into 10 to power minus 9 इज इक्वल टू 2048 ही आएगा. 2 to power 3 और 2 to power 8 है, 2 to power 11 है, 2 to power 10 1024 है, 2 to power 11 2048 है. तो 2048 ही आ गया यहाँ पे. 2048 S to power 3 इज इक्वल टू 2048 इंटू 10 to power minus 9. 2048 कैंसिल हो जाएगा, S आएगा 10 to power minus 3 मोलर. क्लियर है? तो दिस इज द क्वेश्चन विच आई वाज सेइंग अबाउट कि हो सकता है पूरा सॉल्युबिलिटी जितना भी आ रहा है वो पूरा का पूरा डिसोसिएटेड ना हो. तो इफ इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि 100% डिसोसिएशन इज नॉट देयर, देन वी विल हैव टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन. अदरवाइज वी नॉर्मली अज्यूम कि जितना डिसॉल्व हो रहा है वो पूरा का पूरा आयनाइज्ड होगा, राइट. कॉमन आयन इफेक्ट. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट. लेट्स से कि आपके पास एक Ag प्लस और Cl माइनस के बीच में इक्विलिब्रियम है, राइट. उसमें आप ऑलरेडी और थोड़ा और Cl माइनस डाल दो, यू कैन अंडरस्टैंड ली शार्लियर प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम शुड शिफ्ट बैकवर्ड. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन कॉमन आयन इफेक्ट, राइट. तो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल सो दैट इट गेट्स क्लियर, राइट, व्हाट इज हैपनिंग हियर. तो लेट्स से ओके इफ KSP of SrF2 strontium fluoride is given as 8 into 10 to power minus 10, then calculate its solubility in 0.1 molar NaF solution, राइट. हो क्या रहा है? 0.1 मोलर NaF सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है, यानी कि उसमें ऑलरेडी 0.1 मोलर जहां पे भी आपके ऐसे 0.1 मोलर वगैरह दिख रहा है सॉल्ट का, वो अच्छे से सॉल्युबल सॉल्ट है, तभी तो 0.1 मोलर है. 0.1 मोल पर लीटर आप डिसॉल्व कर पा रहे हो. तो 0.1 मोलर आपके पास ऑलरेडी Na प्लस है, उसमें 0.1 मोलर आपके पास ऑलरेडी F माइनस है. इसके ऊपर इस सोल्यूशन में मैं कितना मतलब इसका सॉल्युबिलिटी ले आ सकता हूँ स्ट्रोंशियम फ्लोराइड का, दैट इज द क्वेश्चन, राइट. नाउ SrF2 is going to give you Sr2 plus and 2F minus. तो इसका अगर solubility S है तो मुझे S और 2S मिलेगा. Solubility अगर X है तो X और 2X मिलेगा. But total F minus that I have will not be just 2X. Why? Because I already have 0.1 with me, right? तो 0.1 plus 2X होगा F minus का. अब ये जो 2X है that is negligible compared to 0.1.
हाउ डू यू नो दैट अपफ्रंट? सोच लो कि नहीं है NaF, नहीं होता तो आपके पास ये आता, क्या आता, S आता इसका और 2S आता, तो आपके पास KSP का एक्सप्रेशन होता है S इंटू 2S टू पावर 2, राइट? यानी कि 4S क्यूब आना चाहिए था, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, राइट? तो आपके पास S क्यूब आता 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, यानी कि ये 0.2, तो आप ये बोल सकते हो कि रफली 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 4 रेंज में आता इसका सॉल्युबिलिटी इफ इट वाज अलोन, राइट? तो अगर SRF2 अलोन होता तो 10 टू पावर माइनस 3 के रेंज में आने वाला था सॉल्युबिलिटी, तो ऑब्वियस है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और कम होगा. यू आर एडिंग F माइनस एक्सटर्नली, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड विच मीन सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू फर्दर डिक्रीज. तो ये जो 2x है इसको इग्नोर मार सकते हैं बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी मच लोअर कंपेयर टू 0.1 मोलर विच इज कमिंग फ्रॉम NaF alone, राइट? सो व्हाट आई विल से इज ओके x इंटू 2x इग्नोर मार दो, 2x प्लस 0.1 टू पावर 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10. तो ये आपका x ही ले लो इसको, ये 2x गायब करके 0.1 का स्क्वायर मतलब 10 टू पावर माइनस 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 आ गया. KSP डिवाइडेड बाय F माइनस का स्क्वायर, तो ये आया 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 8. डज दिस जस्टिफाई आवर अजम्पशन? यस. आपका 2S अगर आप लोगे तो 2x आएगा 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7. वो तो क्या ही है कंपेयर टू 0.1, तो यू कैन इग्नोर इट, राइट? सो नॉर्मली कॉमन आयन इफेक्ट में अनलेस एंड अनटिल ये कोई बहुत ही पिद्दू वैल्यू होता, तो लेट्स से कि ये 10 टू पावर माइनस 5 मोलर देते, 10 टू पावर माइनस 4 मोलर देते, फिर तो क्वाड्रेटिक के थ्रू आपको सॉल्व करना पड़ता. बट इन जनरल अगर आप बेसिकली जैसे एक चेक टाइप्स आपको अपनी तरफ से पहले से ही करना है कि स्टैंड अलोन सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी. स्टैंड अलोन सॉल्युबिलिटी के कंपैरिजन में अगर कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इग्नोर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सॉल्ट. अदर वे अराउंड अगर आपका कंपेरेबल होते तो फिर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता. जो भी यहाँ पे क्यूबिक आता, क्यूबिक तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से ही आया हुआ है. बट या बी अवेयर कि हो सकता है आपको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक वगैरह भी अटेम्प्ट करना पड़े, राइट? तो यहाँ पे ये सिंपल सा कॉमन आयन इफेक्ट वाला आ गया, राइट? नाउ what do you mean by simultaneous equilibrium? Simultaneous equilibrium I told you, right? Simultaneous solubility when you have two sparingly soluble salts that are put together. हो सकता कॉमन आयन हो, राइट? तो कॉमन आयन की वजह से इनका दोनों का सॉल्युबिलिटी थोड़ा थोड़ा कम होगा, राइट? वी हैव ऑलरेडी सीन बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड कंपेयर्ड टू like a single solution of this particular salt, right? तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विल सी, राइट? तो कैलकुलेट द साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर थायोसाइनेट and silver bromide in water, given that KSP of silver thiocyanate is 10 to power minus 12 and the KSP of silver bromide is 5 into 10 to power minus 13 respectively, right? Now solubility of let's say कि thiocyanate का आपका X है और AgBr का let's say Y है, right? तो आपका सिल्वर thiocyanate का अगर solubility X है तो Ag प्लस आपको X मिलेगा और SCN माइनस आपको X मिलेगा. एंड AgBr का अगर y है तो Ag प्लस आपको y मिलेगा और Br माइनस आपको y मिलेगा. लेकिन Ag प्लस तो कॉमन है तो आपके पास, और ये दोनों एक ही सॉल्यूशन के अंदर ही है, तो आपको Ag प्लस का टोटल कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा x प्लस वाई एंड दोनों साइड पे वही लिखना पड़ेगा x प्लस वाई. एक बार इसका KSP का एक्सप्रेशन अगर लिखे 10 टू पावर माइनस 12 इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स. सिमिलरली इसका 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू वाई. इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको दिख रहा है x बाई वाई इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 बाई 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 जो कि 2 है. तो आपको x बाई वाई इक्वल टू 2 मिल गया, और या फिर x इज इक्वल टू 2y, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, जो भी इसमें उठा के डाल दो तो आपको मिलेगा x इंटू एक्स प्लस एक्स बाई 2, यानी कि 3x स्क्वायर बाई 2 इज 10 टू पावर माइनस 12, और इसमें उठा के पटक दो या फिर x सॉल्व करके डिवाइड अप बाई 2 करके भी आप y निकाल सकते हो, जो भी, राइट? तो आपके पास x का वैल्यू आया 8.16 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और y का वैल्यू आया 4.08 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, राइट? तो दिस इज साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी. आपके पास जैसे भी हो, जैसे भी टाइप के इक्विलिब्रिया हो, जस्ट राइट डाउन द इक्विलिब्रिया, कॉमन आयंस जो हैं उन सबका एड अप करते जाओ और KSP के एक्सप्रेशंस लिखो, जो सॉल्व कर सकता है उसमें से सॉल्व करो, राइट? Next question.
नाउ प्रेसिपिटेशन, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि प्रेसिपिटेशन कब होगा, जब आपके पास ही इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट यू हैव, राइट, उसमें अपन सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आयंस हैं उनका आयनिक प्रोडक्ट जो है उसको अपन KSP बोलते हैं, राइट। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अपन KSP बोलते हैं। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस आयनिक प्रोडक्ट। अगर फॉर सम रीजन आपको ऐसे लगे कि आयनिक प्रोडक्ट जो है इससे ज्यादा हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय प्रेसिपिटेशन। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपका कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, कैटायन टू पावर इट्स कोएफिशिएंट, एनायन टू पावर इट्स कोएफिशिएंट, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आपके पास KSP से ज्यादा आ रहा है तो वी कैन से प्रेसिपिटेशन होगा। कब तक होगा, जब तक कम हो के वापस आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP ना आ जाए, राइट। तो आपके पास क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 into 10 to power minus 4 moles of Mn2 plus and Cu2 plus each is present in 1 liter solution of 10 to power minus 3 molar HClO4, ठीक है। तो HClO4 का एक 10 to power minus 3 मोलर है, HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस बेसिकली आपको 10 to power minus 3 मोलर दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट विच इज सैचुरेटेड विथ H2S। अब इसमें H2S को भी आपने सैचुरेशन करा दिया। Now question is whether or not each of these ions will be precipitated। आपके पास एक Mn2 plus एक Cu2 plus है, will they get precipitated in this particular saturated H2S का solution where HClO4 is in a concentration of 10 to power minus 3, right? Now they have given you that concentration of H2S in its saturated solution is 0.1 molar। तो H2S का maximum concentration in saturated solution is given as 0.1 molar and the net dissociation constant of H2S। H2S एक डाइप्रोटिक एसिड है, Ka1 Ka2 दोनों है, 10 to power minus 7 10 to power minus 14 होता है, प्रोडक्ट आएगा आपके पास 10 to power minus 21, ठीक है। तो नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2S मतलब H2S से फाइनली H2 माइनस तक जाने में जो सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो 10 to power minus 21। इससे आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे Mn2 प्लस आपको पता है 2 into 10 to power minus 4 मोलर है, कैसे पता है, 1 लीटर में है। कॉपर 2 प्लस का भी 2 into 10 to power minus 4 है। आपको अगर सल्फाइड का कंसेंट्रेशन मिल जाए और इन दोनों को प्रोडक्ट कर ले, ठीक है, जिसका भी आयनिक प्रोडक्ट H2 माइनस इंटू Mn2 प्लस या फिर H2 माइनस इंटू Cu2 प्लस जो भी अपने KSP से ऊपर जाएगा वो प्रेसिपिटेट होगा, राइट। तो नाउ लेट्स लुक एट द डिसोसिएशन इक्वेशन फॉर योर H2S। तो H2S गिविंग यू 2H प्लस प्लस H2 माइनस H2S का कंसेंट्रेशन हमें पता है 0.1 मोलर है इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। H प्लस 10 to power minus 3 है, क्यों, क्योंकि आपने 10 to power minus 3 मोलर HClO4 लिया हुआ है, तो H प्लस आपने कंट्रोल किया हुआ है 10 to power minus 3 में। H2S का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल आएगा, पता ही है, क्योंकि ऑलरेडी H प्लस एक स्ट्रॉन्ग एसिड से पड़ा हुआ है, तो ये H2S से हार्डली कोई H प्लस आने वाला है, कॉमन आयन इफेक्ट बैकवर्ड शिफ्टेड होगा। तो H2S का 0.1 मोलर है, H प्लस का 10 to power minus 3 है, H2 माइनस का क्या होगा, उसके लिए डिसोसिएशन का नेट डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू आपको मालूम है कि 10 to power minus 21 है, तो दैट शुड बी इक्वल टू H प्लस स्क्वायर इंटू H2 माइनस डिवाइड बाई H2S, यानी कि 10 to power minus 21 इस X, अगर सल्फाइड का बोले X, तो X इंटू 10 to power minus 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.1, राइट। तो आपके पास X का वैल्यू आया विच इज सल्फाइड का कंसेंट्रेशन आया 10 to power minus 16 मोलर, राइट। नाउ 10 to power minus 16 इज सल्फाइड का कंसेंट्रेशन इंटू 2 into 10 to power minus 4 करोगे तो आपको देखना पड़ेगा फिर दोनों का KSP वैल्यूज क्या है। MNS का 2.5 into 10 to power minus 10 जो कि काफी बड़ा वैल्यू है, उससे तो बहुत कम है अभी, तो आपके पास 2 into 10 to power minus 20 into 2 into 10 to power minus 4 मतलब नहीं 10 to power minus 16 into 2 into 10 to power minus 4 मतलब 2 into 10 to power minus 20 हो गया, जो कि इसके KSP से बहुत छोटा है, यानी कि इसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड CUS का आपको KSP दिया हुआ है 8.5 into 10 to power minus 36, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट का यही हो सकता है। यहाँ पे कितना आ रहा है 2 into 10 to power minus 20, जो कि इससे डिसेंटली बड़ा है, विच मीन्स कि CUS जो है डेपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? तो MNS CUS में से प्रिफरेबली योर CUS विल बी गेटिंग डेपोजिटेड आउट।
ये सिमिलर टाइप की चीज़ ही है जो आप ग्रुप एनालिसिस में यूज़ करते हो। बाय द वे, 1 by 1 आप जैसे अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड करके रखा हुआ है, वो प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे है। जो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा वो ऊपर ऊपर के ग्रुप से ऐसे ऐसे इवेंचुअली आप स्लोली सबको प्रेसिपिटेट करके निकालते हो, राइट। नाउ सॉल्युबिलिटी इन अ बफर। तो बफर का फंडा ये है कि आपके बफर जो है पीएच मेंटेन करने के लिए, H+OH- मेंटेन करने के लिए, बफर का कोई भी ऐसा आयन नहीं होना चाहिए जो सीधा का सीधा अपने सॉल्ट के साथ इंटरफेयर करे या रिएक्ट करे। फिर तो थोड़ा अलग टाइप का सिचुएशन हो गया, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही हो गया वो। यहाँ पे बफर से बेसिकली हमें H+OH- का फर्क प्राइमरली पड़ता है बस, राइट। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। The solubility of PbOH twice in water is 6.7 into 10 to power minus 6 molar. Calculate its solubility in a buffer of pH is equal to 8. Right? अब आपका PbOH twice की solubility दी हुई है in pure water और आपको pH 8 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा ये पूछा हुआ है, राइट। तो ये सॉल्युबिलिटी यूज करके पहले KSP निकालो। तो आपकी अगर सॉल्युबिलिटी S है तो आपको S मोल्स Pb2+ मिलेगा, S मोलर, और 2 OH- है तो 2S होगा OH- का कंसेंट्रेशन। तो आपके पास KSP क्या आना चाहिए, S इंटू 2S का स्क्वायर, तो 4S³ आना चाहिए, राइट। तो 4S³ से आपको KSP का वैल्यू मिल गया, तो KSP आया आपके पास 4S³ जो कि आता है 1.2 इंटू 10 to power minus 15, राइट। तो ये 6.7 का बेसिकली क्यूब आपका 300 है। 4S³ आया आपके पास 1.2 इंटू 10 to power minus 15। अब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी इन pH इज इक्वल टू 8 जो है S है अगर मान लो, तो S मोल्स आपको Pb2+ मिलेगा। OH- का कंसेंट्रेशन क्या है, आप मेंटेन कर रहे हो बफर यूज करके। बफर का काम ही क्या है, pH मेंटेन करना है, तो हमें इसके अलावा और कोई OH- देखना ही नहीं है, क्योंकि अगर इससे थोड़ा बहुत इससे आ रहा होगा तो बफर बाकी कंट्रीब्यूट करेगा, बहुत ज्यादा इससे आ रहा होगा तो बफर ऑटोमेटिकली उसको गायब कर देगा। वन वे और दी अदर OH- का कंसेंट्रेशन इज हाउ मच, 10 to power minus 6। हाउ, pH is given as 8, यानी कि POH is 10 to POH is how much, 14 minus 8 6, यानी कि OH- is 10 to power minus 6। तो आपके पास KSP क्या आना चाहिए, Pb2+ का कंसेंट्रेशन इंटू OH- का स्क्वायर। तो KSP ऑलरेडी आ गया अपने पास 1.2 इंटू 10 to power minus 15 है। दिस शुड बी इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, अगर S है तो ये S और ये 2S मिलना चाहिए, लेकिन हमें 2S लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बफर उसको ऑटोमेटिकली 10 to power minus 6 पे लाके रख देगा। तो सॉल्युबिलिटी S इंटू 10 to power minus 6 का होल स्क्वायर शुड बी KSP। सॉल्युबिलिटी आया आपके पास 1.2 इंटू 10 to power minus 3, ठीक है। यहाँ पे ये यू कैन सी दैट सॉल्युबिलिटी इज हायर देन व्हाट यू वुड नॉर्मली सी इन वाटर। व्हाई इज दैट सो? यूजिंग अ pH of 8 which is very close to neutral, you are basically which is slightly basic to, आप थोड़ा करके आप OH- का जो कंसेंट्रेशन है कम कर रहे हो। सॉल्युबिलिटी जो है उससे कंपेरेबल टाइप्स ही है, बहुत ऐसे मतलब कम तो नहीं कर रहे हो। देख रहे हो सॉल्युबिलिटी जो है 6 इंटू 10 to power minus 6 है और आप मेंटेन कर रहे हो 10 to power minus 6 OH-। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी 6 इंटू 10 to power minus 6 है तो अकेले पानी में ये 12 इंटू 10 to power minus 6 यानी कि 1.2 इंटू 10 to power minus 5 होना चाहिए था OH-, लेकिन आप उसको कम कर रहे हो बफर यूज करके, आप कम कर रहे हो 10 to power minus 6 पे ले आ रहे हो। तो आप जब कम करोगे तो आप प्रोडक्ट हटा रहे हो, प्रोडक्ट हटाओगे तो इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट होगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, योर सॉल्युबिलिटी हैज गॉन अप बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट योर बफर इज टेकिंग अवे OH- फ्रॉम द सॉल्यूशन, right? So the equilibrium is forward shifted, you get 1.2 into 10 to power minus 3 as your solubility in this particular buffer. Let's look at one more question, right? So calculate the solubility of AgCN in a buffer solution of pH is equal to 3, ठीक है। बफर है, pH is equal to 3, given that KSP is 1.2 into 10 to power minus 15 and Ka for HCN is 4.8 into 10 to power minus 10, ठीक है। Let me first explain what exactly is going to happen here, ठीक है। pH is given as 3 which means that H plus is 10 to power minus 3, ठीक है। अब Cn minus आपका Ka of HCN is given as 4.8 into 10 to power minus 10. What does that tell you? ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, राइट। What does that tell you? कि आपका HCN का हार्डली कोई डिसोसिएशन होता है। HCN एक बहुत ही वीक एसिड है,
उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, Cn माइनस एज अ बेस। समझ में आया, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो आपका Cn माइनस को अगर H प्लस दिख गया तो वो HCN में कन्वर्ट होना ही होना है, बेसिकली दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, राइट। तो आपका जो AgCN है उसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से, नॉर्मली बफर सॉल्यूशन में नॉर्मली। क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि इससे जो AgCN में से Ag प्लस और Cn माइनस बन के सॉल्यूशन में आ रहा है, दैट Cn माइनस इज बीइंग कैप्चर्ड बाय माय बफर एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू HCN। और HCN हमारा आयनिक प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है, Cn माइनस है। तो जब तक आप Cn माइनस बेसिकली आपका प्रोडक्ट आप हटाते जा रहे हो मार्केट में, तो उतना ही इक्विलिब्रियम आगे शिफ्टेड होगा, right? So this solubility is going to go up because of the fact that you are removing Cn minus from the solution using your buffer, right? So what we are saying is, okay, Ag plus का consideration क्या होगा, solubility जितना ही होगा, ठीक है। Cn माइनस उतना बना था पहले solubility जितना, बट उतना अभी आपके पास है नहीं, right? Because that Cn minus is going to get converted into HCN also. So what we are saying is, if let's say solubility is X, then X should be equal to Cn minus, which is currently finally there, जो कि होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, ऐसे कोई इक्विलिब्रियम कभी कोई गायब नहीं कर सकता पूरा। तो आपका बफर से जो H प्लस आ रहा है, that is converting it into HCN, and like whatever Cn minus is left over. तो total solubility will be Cn minus plus HCN. What we need to do is to get this HCN in terms of Cn minus one way or the other, ठीक है। तो what we are saying is, okay, let's look at the dissociation equilibrium. HCN giving you H plus plus Cn minus, तो Cn minus into H plus divided by HCN होगा Ka। तो 4.8 into 10 to power minus 10 is equal to H plus into Cn minus upon HCN। अब इसमें H plus हमें पता है 10 to power minus 3 है, Cn minus जो भी है एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसके टर्म्स में आप HCN लिख सकते हो। HCN क्या आएगा, ये 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 नीचे आओ, ले आओ, और H प्लस का वैल्यू क्या है, 10 टू पावर माइनस 3, क्योंकि बफर है, तो 10 टू पावर माइनस 3 इंटू Cn माइनस अपॉन 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। तो ये आया आपके पास HCN इज इक्वल टू Cn माइनस इंटू 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 4.8। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बेसिकली आपके पास Cn माइनस थोड़ा सा ही बचा हुआ होगा, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा HCN में कन्वर्ट हो रहा है। तो Cn माइनस इंटू 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 4.8, राइट। तो आपके पास टोटल सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो क्या आएगा, Cn माइनस इंटू 1 प्लस 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 4.8। समझ में आया, Cn माइनस जो भी अभी है प्लस HCN which I am writing as 10 to power 7 divided by 4.8 times Cn minus। तो Cn minus into 1 plus this thing था, अब वो 1 को मैं इग्नोर मार सकता हूँ, क्योंकि compared to 10 to power 7 by 4.8 which is roughly what, I mean 2 point something into 10 to power 6, उसके कंपैरिजन में 1 तो क्या ही है। तो ये Cn minus हार्डली कुछ होगा, सॉल्युबिलिटी जितना है उतना ही HCN आपको मिलेगा, दैट इज व्हाट मोर और लेस व्हाट वी आर सेइंग, राइट। तो आपके पास मोर और लेस पूरा का पूरा HCN में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये Cn माइनस के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो Cn माइनस इंटू 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 4.8 हो गया। तो आपके पास KSP का एक्सप्रेशन क्या आएगा, KSP है 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 इज इक्वल टू Ag प्लस का कंसेंट्रेशन तो सॉल्युबिलिटी जितना ही है, X जितना ही है, इंटू अब ये आपका Cn माइनस इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या आएगा, 4.8 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 7, राइट। तो इनटू, तो ये Ag प्लस का कंसंट्रेशन इनटू 4.8 अपॉन 10 टू पावर 7 टाइम्स अगेन सॉल्युबिलिटी दिस X, दिस शुड बी योर KSP। इससे आपको X का वैल्यू मिल जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। तो कंपेयर टू ओरिजिनल आपका KSP 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 था, तो इसका ओरिजिनल सॉल्युबिलिटी जो है 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू पावर माइनस 8 होना चाहिए था। उसके कंपैरिजन में ये 1000 टाइम्स बेटर है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। क्यों? क्योंकि buffer is basically taking away Cn minus from your product and converting it into HCN. So that is exactly what is increasing the solubility, right? Because you are removing product from your solution, right? What do you do? How do you do this? You normally basically use the relation of Ka to find out a relationship between HCN that is produced and Cn minus that is currently there at this point in time, right? और आप
सॉल्युबिलिटी को एज अ फंक्शन ऑफ Cn माइनस प्लस HCN लिखोगे, और Cn माइनस नेग्लिजिबल होगा तो HCN ही ले लिया, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 10⁻7 टाइम Cn माइनस अपॉन 4.8 आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके Cn माइनस आया 4.8 टाइम सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय 10⁻7। फिर उसके बाद Cn माइनस इंटू Ag प्लस इज इक्वल टू KSP से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। सो गो थ्रू दिस solution once again in detail. Understand that per question, I mean like for example यहाँ पे मोनोवेसिक एसिड था, राइट। आपके पास हो सकता है कि Ag2S टाइप का कोई सिचुएशन आए जहाँ पे H2 माइनस है। H2 माइनस में जो है थोड़ा और अलग प्रोसेस होता है, यहाँ पे जैसे सिंगल स्टेप ही था, कहाँ गया, हाँ एक ही सिंगल स्टेप प्रोसेस था कि आपका HCN गिविंग H प्लस प्लस Cn माइनस। उसमें वैसे नहीं होगा, उसमें अगर आपके पास H2 माइनस है तो H2 माइनस पहले HS माइनस में कन्वर्ट होगा, फिर HS माइनस H2S में भी कन्वर्ट होगा, तो ऐसे 2 स्टेप में भी चल सकते थे, तो वहां पे थोड़ा और डिफरेंट होता। केस बाय केस यू हैव टू लिटरली कंसिडर बफर वाले क्वेश्चंस। ओनली थिंग इज कीप योर माइंड वेरी ओपन एंड अंडरस्टैंड व्हाट ऑल रिएक्शंस कैन पॉसिबली टेक प्लेस। कौन एसिडिक है कौन बेसिक है वो प्राइमरली समझो, क्योंकि बफर तो एसिड बेस वाला ही है, तो आपको एसिडिक बेसिक कौन कौन है, किसके बीच में रिएक्शन होगा, कहाँ आगे की तरफ कितना जाएगा, ये सब आपको समझना होगा, ठीक है। So this was about the solubility of AgCN in a buffer of pH is equal to 3, right? Now complexation, the last part as far as the solubility wala topic is concerned. Now complexation reaction also same story, increases solubility. Why is that so? कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से सेम स्टोरी तो हो रहा है, आप प्रोडक्ट आप हटा रहे हो वन वे और दी अदर, आप कैटायन को उठा के वहां से हटा रहे हो, एनायन जो भी, राइट। तो जैसे भी आपके अगर कैटायन एनायन में से कुछ भी आप अगर हटा पा रहे हो बाय कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, तो आप बेसिकली प्रोडक्ट हटा रहे हो, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड विच मीन्स द सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू गो अप, राइट। तो आपके पास एक एग्जाम्पल देख के आई विल जस्ट लाइक ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग हियर नॉर्मली द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड अपफ्रंट, सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा भी, राइट। सो व्हाट मस्ट बी द कंसंट्रेशन ऑफ aqueous ammonia which must be added to a solution containing 4 millimolar Ag plus and 0.001 molar NaCl to prevent the precipitation of AgCl। तो आपके पास AgCl है, राइट, जिसका प्रेसिपिटेशन हो सकता है। आपके पास 0.001 मोलर Cl माइनस है, NaCl है मतलब Cl माइनस है, और आपके पास Ag प्लस भी है जिसका 4 × 10⁻³ है। तो अगर ये अमोनिया नहीं होता तो लुक एट द आयनिक प्रोडक्ट 4 × 10⁻³ into 10⁻³ 4 × 10⁻⁶, which is much greater than its KSP of 1.8 × 10⁻10। तो ये पक्का प्रेसिपिटेशन हो जाना चाहिए था यहाँ पे, राइट, लेकिन ये यहाँ पे नहीं कराना है आपको, तो आप अमोनिया सोल्यूशन डाल रहे हो क्योंकि सिल्वर अमीन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसकी वजह से Ag प्लस डायरेक्टली सोल्यूशन में कम हो जाएगा, तो आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, बेसिकली आपका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, राइट। तो ये बॉर्डरलाइन केस क्या है, ये पूछा हुआ है कि अमोनिया कितना डालना चाहिए कि मेरे पास इसका प्रेसिपिटेशन होने से जस्ट मैं बचा सकूं, ठीक है। अब ये जस्ट बचा सकूं वाले एंगल पे ओके, और सिल्वर अमीन कॉम्प्लेक्स का जो AgNH3 ट्वाइस प्लस का फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया हुआ है 10⁸/6, यानी कि Ag plus 2NH3 giving in equilibrium with AgNH3 twice complex K equilibrium is given as 10⁸/6। ये देख के समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस बहुत ही फॉरवर्ड डायरेक्शनल रिएक्शंस होते हैं, बहुत स्टेबिलिटी आती है, तो ये बहुत फटाक से आगे जाएगा, 100% ऑलमोस्ट आगे जाएगा टाइप के रिएक्शंस हैं, राइट। नाउ फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट कि आपका सिल्वर का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए फाइनली ताकि प्रेसिपिटेशन ना हो, राइट। Cl माइनस तो फिक्स है 10⁻³ है, राइट। तो वो बॉर्डर लाइन केस क्या है, Ag प्लस का मैक्सिमम क्या कंसेंट्रेशन हो सकता है, लेट्स से इट इज सम x, राइट। तो का Ag प्लस इंटू 10⁻³ शुड बी 1.8 × 10⁻10, विच मीन्स दैट Ag प्लस का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू शुड बी 1.8 × 10⁻7 मोलर, ठीक है। आपके पास कितना था, आपके पास ओरिजिनली 4 × 10⁻³ Ag प्लस था, लेकिन अभी कितना है 1.8 × 10⁻7, मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया, डिवाइड अप बाय ऑलमोस्ट 2 × 10⁻4 टाइप्स हो गया, यानी कि ये
बहुत कम कर दिया आपने, ना ही है अब, मतलब Ag प्लस बचा ही नहीं है टाइप का सिचुएशन हो गया, राइट। तो Ag प्लस आपके पास 1.8 इंटू 10⁻⁷ है, विच मीन्स Ag प्लस इज मोर और लेस एंटायरली कंज्यूम्ड। तो लेट्स जस्ट से कि Ag प्लस प्लस 2NH3 गिविंग यू AgNH3 ट्वाइस इज द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट 10⁻8/6 दिया हुआ है। अब ओरिजिनली Ag प्लस था 4 इंटू 10⁻⁻3, अभी कितना चाहिए 1.8 इंटू 10⁻⁷, यानी कि ये मोर और लेस पूरा खत्म करना है, राइट। 4 इंटू 10⁻⁻3, इन दोनों में डिफरेंस तो मतलब 4 इंटू 10⁻³ ही है मोर और लेस। तो आपका अगर B है, 1 मोल के साथ 2 मोल का रिएक्शन होता है, तो इसका 4 इंटू 10⁻³ मोल के साथ इसका 8 इंटू 10⁻³ मोलर रिएक्शन होगा, राइट। तो ये B अगर था तो B माइनस 8 इंटू 10⁻³ हो गया। अगर यहाँ पे 4 होते फॉर सम रीजन कि ये 4 मॉलिक्यूल्स होते तो माइनस 4 इंटू 4 मतलब 16 इंटू 10⁻³ होता है, राइट। तो यहाँ पे अमोनिया का इनिशियली क्या है वही देखना है हमें, व्हाट इज दी concentration of aqueous ammonia that must be added so that precipitation can be avoided था। तो let's just say B मोलर है, B माइनस 8 इंटू 10⁻³ हो जाएगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेशन, और इसका 1.8 इंटू 10⁻⁷ बचेगा, और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल मिलता है, तो इसके 4 इंटू 10⁻³ से इसका 4 इंटू 10⁻³ मिलेगा। अब इसका जो रिएक्शन है, इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि दिस डिवाइड बाय दिस स्क्वायर इनटू दिस आपको दिया हुआ है, राइट। तो आपके पास फॉर्मेशन कांस्टेंट 10⁻8/6 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1.8 इंटू 10⁻⁷ इंटू B माइनस 8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, B मिल जाएगा, सिंपल है। तो ऑल यू हैव टू डू इज, again there is no standard approach to any of these questions related to buffer and complexation. The idea is that you have to look at some kind of approximations, you have to make very valid logical assumptions and accordingly, I mean ये हर जगह ही more or less आएगा, ये मोल टाइप का जो लिखने वाला चीज़ है, और बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन इसके नंबर ऑफ मोल सब चीज़ की अगर आप लिख सकते हो तो यू आर ऑलरेडी ऑन ट्रैक। व्हाट डिड वी डू हियर, Ag प्लस का ओरिजिनल कंसंट्रेशन दिया हुआ था, अमोनिया का पता करना था, तो Ag प्लस का 4 इंटू 10⁻³ है, बाद में 1.8 इंटू 10⁻⁷ है। कैसे पता, बॉर्डर लाइन केस कि आपके पास 1.8 इंटू 10⁻⁷ तक में ये 0.001 मोलर Cl- के साथ प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, तो मोर और लेस पूरा खत्म ही कर दिया है आपने। तो ऑब्वियसली इसके 1 मोल के साथ इसका 2 मोल का रिएक्शन है, तो 4 इंटू 10⁻³ के साथ 8 इंटू 10⁻³ हो गया, तो B माइनस 8 इंटू 10⁻³ हो गया आपका अमोनिया का एट दिस पॉइंट आफ्टर कॉम्प्लेक्सेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन इज गिवन एज 10⁻8/6, तो 10⁻8/6 इज 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10⁻⁷ एंड B माइनस 8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आपको B का वैल्यू मिला 0.0445, दैट इज योर आंसर दैट इज रिक्वायर्ड, राइट। सो वंस अगेन एज आई वाज टेलिंग यू, ये सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चंस रिलेटिवली मेंस में सिंपल ही आते हैं, ऐसे कोई टफ नहीं होता। सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी S एंड KSP, या फिर KSP दे दिया सॉल्युबिलिटी पूछ ली, सॉल्युबिलिटी दे दी KSP पूछ लिया, ऐसे टाइप के रिलेटिवली सिंपल होते हैं। एट मैक्स कॉमन आयन इफेक्ट वाले क्वेश्चंस कि हाँ भाई एक AgCl का एक NaCl सोल्यूशन में क्या है, या फिर AgBr का NaBr सोल्यूशन में कितना है, ऐसे टाइप के सिंपल रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चंस होंगे। कॉम्प्लेक्सेशन और बफर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मोस्टली एडवांस में एक्सपेक्टेड है, बट या कैन बी एनीवेयर, राइट। So with this we kind of end our Ionic Equilibrium chapter. I have received a lot of requests from you guys regarding the next chapter to be done. I'll decide which is the series that I have to go ahead with. Redox का बहुत मिला है, gaseous state का मिला है, electrochemistry का बहुत suggestion मिला. I'll go through like what all like my team here suggests me, because I mean on the basis of all the comments and all, whatever they feel, I mean whatever the students are requesting will be what we'll be making for you, right? Plus anyways अभी तो मतलब mains आ रहा है, advance भी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत tight भी रहेगा, but still I'll try and come up with some kind of series very soon for you, right? Best of luck.
go through all the videos once again from the beginning so that you get a clearer idea about the chapter, and attempt as many questions as possible. Solved examples जितने भी जो भी books से आप पढ़ते हो, just go through all of them and attempt questions similar to that. Right? Just practice as much as you can. Don't try to by heart these formula from Ionic Equilibrium. I've already told you. ना हो पाएगा, बहुत ज़्यादा formula है. Try and understand the logic and do as many questions as possible from each type so that you get used to solving those questions rather than by hearting the formula. Right? Best of luck, students. Once again, this is Abhilash from Vedantu, and download our app, download our doubts app, download our regular app. Ask all your doubts on our doubts app. We will be available for you to clear all your doubts. Right? Best of luck.